Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay. So yesterday we have studied all these topics: data signals and analog and digital signals का transmission and different methods for transmission and noiseless channel we have studied, noisy channel we have studied. Okay, so आज we have to start with the performances. ठीक है, so performance में we have discussed the bandwidth and throughput also we have discussed, and we have to start with the latency, that is your delay. ठीक है, so delay basically क्या होता है? Delay is basically defined as how long it takes for an entire message. That is what I've explained yesterday also, कि if your message is divided into few bits, so how long it will take from going from this place to this place, and that is for the entire message. मतलब if your message is divided into 3 bits 100, so if this is your first bit, so obviously it will be loaded first here on the transmission medium, ठीक है, at suppose t0, and then it will move forward. Then after some time this second bit will be loaded on your channel, and then third bit will be loaded on channel. So obviously जो पहले लोड कर दिया जाएगा चैनल पे, इट विल रीच फर्स्ट, राइट? सो ये आपकी फर्स्ट बिट जो है यहाँ पे पहले पहुंच जाएगी, फिर आपकी सेकंड बिट जाएगी, एंड देन योर थर्ड बिट विल गो. So what is latency or delay? The latency or delay defines how long it takes for an entire message to completely arrive at the receiver side or destination from time the first bit is sent out from the source. मतलब T0 से T0 पे आपने अगर अपनी ये फर्स्ट बिट जो है, अगर सोर्स ने अपनी फर्स्ट बिट को मूव आउट कर दिया था चैनल पे, जिससे कि वो ट्रैवल कर सके आगे टू द रिसीवर या टू द डेस्टिनेशन. सो फ्रॉम T0 अप टू द टाइम जब सारी तीनों बिट्स आपकी पहुंच गई हैं टू द डेस्टिनेशन. So this is basically your latency or delay. So latency or delay के लिए we have 4 times जो हम calculate करते हैं. First is your propagation time, transmission time, queuing time and processing delay. ठीक है, so propagation time हम पढ़ेंगे, transmission time हम पढ़ेंगे, queuing time हम पढ़ेंगे. Processing delay basically means कि इस पूरी प्रोसेस को करने में, इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉम सेंडिंग द बिट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इस पूरे प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर प्रोसेसिंग डिले. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद प्रोपगेशन टाइम. प्रोपगेशन मींस होता है टू मूव फॉरवर्ड या टू मूव, ठीक है, टू प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो प्रोपगेशन टाइम मेजर्स द टाइम required for a bit to travel from source to destination. अगर आपकी डिस्टेंस है सोर्स टू डेस्टिनेशन की ये, ठीक है, S to D, if this is there, so propagation time means कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम ले रहे हो, एक बिट कितना टाइम ले रही है. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बिट टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब प्रोपगेशन का फॉर्मूला होता है प्रोपगेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन प्रोपगेशन स्पीड. सो प्रोपगेशन स्पीड बेसिकली मींस स्पीड क्या है उस बिट की ट्रैवल करने की. ओके, सो प्रोपगेशन टाइम हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट, अगर एग्जांपल के लिए हम एक्सप्लेन लें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.1 किलोमीटर एंड स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज बोथ आर द सेम टर्म्स. सो वेलोसिटी है आपकी 2.1 into 10 raised to power 8 मिली per second, meter per second, ठीक है. So now you have to calculate कि what will be your propagation time. So propagation time को आप t
अंडरस्कोर पी भी डिनोट करते हो. सो ये आपको पूछना, ठीक है. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड? प्रोपगेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट? सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन, आप स्पीड ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक ही बात है. So what is the distance? Distance है आपका 2.1 किलोमीटर का and the speed is 2.1 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब this is very clear to us कि जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमेशा सिमिलर होनी चाहिए. So what it will become? It will become 2.1 into 10 raised to power 3 upon 2.1 into 10 raised to power 8. So ये आपका मीटर में हो गया, ये आपका मीटर पर सेकेंड का ही है, ठीक है. सो ये आपका क्या हुआ? 2.1 से 2.1 कैंसिल आउट हो गया and what it will become? 10 raised to power 3 upon 10 raised to power 8. It will be equal to 10 raised to power minus 5. मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंड, right? So what is the propagation time? The propagation time is 10 raised to power minus 5 second. It is clear हुई everyone? Yes, ma'am. ठीक है. तो बेसिक मैथ्स है और कुछ नहीं, ठीक है. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन और एक मिनट, लेट मी फाइंड इट. और राइट, अगर सपोज करो कि दे हैव नॉट गिवन यू द स्पीड, दे हैव नॉट गिवन यू, दे आर नॉट मेंशन द स्पीड, ठीक है. यहाँ पे कुछ नहीं बोला इन्होंने कि इस क्वेश्चन में तो दे हैव गिवन यू द स्पीड, कि स्पीड आपकी क्या थी? 2.1 into 10 raised to power 8. But if in case they have not mentioned anything related to speed, so by default, if nothing has been mentioned over there, so you will take v is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second, that is speed of light, ठीक है. अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो ओके. सो दिस इज दिस वन, ठीक है. एक मिनट. ना नेक्स्ट ये हो गया आपका प्रोपगेशन टाइम. तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन टाइम? ट्रांसमिशन टाइम क्या बोलता है कि द फर्स्ट बिट में टेक अ टाइम इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. व्हाट इट इज सेइंग? व्हाट इज प्रोपगेशन टाइम? प्रोपगेशन टाइम इज कि यू आर एट दिस प्लेस एंड सेंडर आप डेस्टिनेशन आपकी यहाँ पे, ठीक है. सो अब आपकी जो मैसेज है, द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड इज 010. दिस इज द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड. सो आपने स्टार्ट किया फर्स्ट बिट से जो आपकी है 0, ठीक है. सो एज सून आपने 0 सेंड किया, सो इट इज सेइंग कि फर्स्ट बिट को जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट बिट टू रीच फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन इज व्हाट? वो आपका प्रोपगेशन टाइम के इक्वल हो जाएगा, राइट? राइट, Yes, ma'am. है ना. बिकॉज सी प्रोपगेशन टाइम क्या है? प्रोपगेशन टाइम इज बेसिकली कि फर्स्ट बिट को कितना टाइम लग रहा है, मतलब फर्स्ट बिट सॉरी एक बिट को कितना टाइम लग रहा है फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन, दैट इज योर प्रोपगेशन टाइम. सो इफ आई हैव टू सेंड 0 फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन, उसको कितना टाइम लगेगा? टीपी, दैट इज योर प्रोपगेशन टाइम. सिमिलरली सेकंड बिट को भी इतना ही टाइम लगेगा और लास्ट बिट को भी इतना ही टाइम लगेगा, कितना? टीपी. बट however there is a time between the first bit leaving the sender and last bit arriving the receiver. तो what वो क्या बोल रहे हैं कि सपोज अगर फर्स्ट बिट ने आपका फर्स्ट बिट अगर आपकी t इक्वल टू t1 जो आपका टाइम था फर्स्ट बिट का, वो सपोज 1 मिली सेकेंड था, ठीक है. मतलब 1 मिली सेकेंड से नहीं, टाइम ले लो आप ऐसे, सपोज कि जब t था, यूनिट हम बाद में देखेंगे, t है आपका 1. सो आपने स्टार्ट किया 0, दैट इज द फर्स्ट बिट आपने स्टार्ट की सेंड करनी, ठीक है. फिर सेकंड बिट आपकी सेंड हुई, सपोज टीपी आपका आ गया 2 का है, सपोज 2 टाइम यूनिट का आपका टीपी है. सो फर्स्ट बिट अगर 1 पे हम भेज रहे हैं, सो 2 मतलब 3 पे आपकी फर्स्ट बिट आ गई. फर्स्ट बिट हो गई आपकी 3 टाइम यूनिट में आपकी फर्स्ट बिट यहाँ पहुंच जाएगी. फिर उसके बाद फोर्थ पे आपने t इक्वल टू 4 पे आपने सेकंड बिट को यहाँ पे स्टार्ट किया सेंड करना, या 4 पे क्यों आप अगर यहाँ पे मान लो जैसे ये हाफ प्लेस पे आई, दैट इज एट 1, ठीक है. अब मैं क्या समझा रही हूँ आपको, यहाँ पे समझाओ. सी
हम यहाँ पे this is the sender over here and the destination is somewhat over here and the time taken from sender to destination जो time लग रहा है that is your TP and suppose this time is 2 units 2 unit का time है ठीक है so when and the message that you want to send is suppose 01 का message है जो आपको send करना है so what you will start with the first bit so now when you started with the first bit that is 0 यहाँ से आपने start किया and suppose you have started at t equal to 0 so जब t equal to 0 पे you started for the first bit that is 0 so suppose it has now started moving forward now when it reached this point that is at t equal to 1 पे you send जैसे यहाँ पे 0 आया यहाँ पे you have started sending this 1 ठीक है सो ये 0 जो आपकी बिट है 0 बिट दैट इज योर फर्स्ट बिट बताओ ये कौन से टाइम पे पहुंच गई होगी फर्स्ट बिट विल रीच एट टाइम इक्वल टू 2 राइट और नॉट अगर मैं फर्स्ट बिट की बात करूं दैट इज 0 सो वो प्रोपगेशन टाइम लेगी टू गो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर डेस्टिनेशन प्रोपगेशन टाइम कितना है आपका 2 सो फर्स्ट बिट आपकी टाइम 2 पे 2 जो आपका टाइम हुआ यूनिट 2 पे वो पहुंच गया एट योर डेस्टिनेशन और सेकंड बिट कब पहुंचा सेकंड बिट स्टार्टेड ट्रैवलिंग एट t equal to 1 राइट सेकंड बिट स्टार्टेड ट्रैवलिंग एट t equal to 1 सो जब t equal to 1 पे उसने स्टार्ट किया है सो उसको भी इतना ही टाइम लगेगा दैट इज 2 सो वो कितने टाइम पे पहुंच जाएगा वो पहुंच गया आपका 3 पे एनी डाउट Madam, propagation time we are calculating each and every bit. Sorry. नहीं समझ में आ रहा महेश क्या कह रहे हो आप Propagation time है ना मैम प्रोपगेशन टाइम आपका क्या होता है ये पूछ रहे हो we are calculating each and every bit of the data, right? हाँ सी प्रोपगेशन टाइम होता है कि हर बिट को कितना टाइम लग रहा है टू गो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ठीक है so, मैंने बोला है कि प्रोपगेशन टाइम बेसिकली आपका है अगर 2 टाइम यूनिट का 2 यूनिट का सपोज यहाँ पे यूनिट हमने लिया है सेकंड्स की जगह हमने यूनिट लिया है 2 यूनिट का प्रोपगेशन टाइम है तो दिस मींस दैट जो मेरी फर्स्ट बिट थी 0 उसे सेंडर से रिसीवर तक जाने में कितना टाइम लगेगा 2 यूनिट्स का टाइम लगेगा बिकॉज क्योंकि ये डिस्टेंस जो टाइम ले रहा है दिस डिस्टेंस द टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इज ऑफ 2 यूनिट्स ठीक है सो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दे आर सेइंग दैट जब आपकी फर्स्ट बिट जो सेंडर के पास थी उसने जब लीव किया होगा और जो लास्ट बिट आई होगी रिसीवर के पास उसके बीच में कुछ टाइम डिफरेंस हुआ होगा why because पहली bit will leave earlier and arrive earlier and last bit will leave later and arrive later obviously आपने notice किया होगा अगर आप if you are if you are sharing a room with 3 of your friends ठीक है you are 3 friends and you have to reach a class आपको class जाना है and you are at your room ठीक है you are at your hostel room so suppose अगर first student जो first आपकी roommate है अगर वो आपसे पहले गई निकली है क्लास जाने के लिए एंड वी आर होपिंग दैट इट इज डायरेक्टली गोइंग टू क्लास सो ऑब्वियसली अगर आप सेकंड पे गए हो तो वो आपसे पहले पहुंच जाएगी ठीक है फिर आप पहुंचोगे सेकंड पे और फिर जो वो आपकी रूममेट पहुंचेगी जो सबसे लास्ट निकली होगी तो वो सबसे लास्ट में आएगी ठीक है यही चीज वो बोल रहे हैं द फर्स्ट बिट लीव्स अर्लियर एंड इट विल अराइव अर्लियर एंड द लास्ट बिट लीव्स लेटर एंड इट विल अराइव लेटर So the time required for the transmission of a message depends on the size of message and the bandwidth of channel. So transmission time क्या हो गया आपका transmission time basically हो गया कि आपको अपना data जो आपका पैकेट है data जो आपका है data पैकेट उसको transmit करने में from host on to the outgoing link मतलब जो आपका link है उसको transmit करने में कितना time लग रहा है that is your transmission time. Okay, so transmission time is basically equal to message size upon bandwidth. Message size, frame size, कुछ भी बोल सकते हो आप. So what is transmission time? Transmission time is basically कि आपने जो अपना data है, if you are at यहाँ पे हो आप अगर, so यहाँ से आपने कितना time लगा अपने data को यहाँ पे transfer करने में.
ठीक है, इस लिंक पे ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज योर ट्रांसमिशन टाइम. और व्हाट इज प्रोपगेशन टाइम? प्रोपगेशन टाइम इज की सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. सो दिस इज व्हाट इज प्रोपगेशन टाइम. ये डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों के बीच में? क्या डिफरेंस है? एवरीबॉडी, एनी डाउट? डिफरेंस क्लियर हो गया एवरीवन? एनी, किसी को डाउट है तो पूछ लो. क्लियर मैम. ठीक है, तो अगर आप यहाँ आपको कितना टाइम लगा, ट्रांसमिशन टाइम इज बेसिकली द टाइम दैट इज टेकन फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा ऑन द link, on the medium या on the channel. Or propagation time is basically the time taken from sending the bits from sender to the receiver. What is transmission time? Transmission time is message size upon bandwidth. So suppose if I say that, if I give you an example and it says that जो आपका डेटा साइज कैन आल्सो बी नेम्ड एज फ्रेम साइज. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए वहां पे डेटा साइज इज 1 KB एंड बैंडविड्थ इज 1 kbps. Okay, so you have to tell what will be the transmission time, that is TT. So transmission time क्या हो जाएगा आपका? What is the formula for transmission time? Transmission time says message size या data size कुछ भी upon bandwidth. Okay, so now what is 1 KB? ये वैल्यू क्या होगी डेटा साइज के टर्म्स में? 1 KB क्या होगा? करेक्ट महेश, करेक्ट. दैट इज 1024 बिट्स. भूल गए क्या? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहा है कोई? बैंडविड्थ क्या होगी? 1 kbps. अब यहाँ पे क्या है? ये किलो बिट्स पर सेकेंड. एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि किलो का क्या होता है? किलो इज बेसिकली 10⁻³ राइट. सो यहाँ पे आपका हो गया 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड. सो ये भी आपकी बिट्स में हो गई और ये भी आपकी बिट्स में हो गई. सो इट इज 1024 अपॉन 1000 सेकेंड, बिकॉज बिट्स से बिट्स कैंसिल हो गया, पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो इट विल बी सेकेंड. सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 1.024 सेकेंड. मैम, हाँ जी. Ma'am, I have forgotten this conversation KB to beat to byte. अच्छा, तो मतलब ओके, तो मैं एक्सप्लेन करूँ पूरा ये वो आपका ये कन्वर्जन. सी ये Ma'am, तो 1 KB आपका कितना होता है? 1 KB इज वेरी सिंपल, 1024 बिट्स होता है आपका. मतलब क्या क्या बताऊं मैं आपको इसमें? ma'am, KB to beat and beat to byte. Ma'am, there is this list KB to MB. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. ओके, ठीक है. फिर आपका जो भी आपका अगर MB दिया हुआ है, 1 MB दिया हुआ है, सो इट इज व्हाट? इट इज आपका बेसिकली, अगर हम वैसे अगर आप बात करो उस सेंस में कि आपकी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स बात करें, सो वो आपका हो जाएगा, वो होता है 2⁻20 समथिंग ऑल. ठीक है, बट यहाँ पे अगर डेटा साइज के बारे में बात करोगे, सो डेटा साइज आपकी मोस्टली आपके किलो बिट्स में ही पूछे जाएंगे. ठीक है, बिकॉज डेटा साइज आपको हमेशा केबी की फॉर्म में ही देगा. So you have to remember that 1 KB is equal to 1024 bits and 1 byte is equal to 8 bits. ठीक है, I'll give you one example. Try करो उसे करने का. The example is data size है आपका 2 kilobits, that is 2K bits, not kilobits, 2K bits, and bandwidth है आपकी 10 Mbps. ठीक है, so you have to tell what is the transmission time. बताओ क्या होगा transmission time?
यस, बताओ क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा आपका? फॉर्मूला हो गया डेटा साइज, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो 200 सेकेंड्स। मैम बाकी 1 MB equals to how many beats? No, how many bytes? कल मैंने आपको अगर आपने कल की वीडियो देखी तो आप टोल्ड यू कि m बेसिकली मींस 10 raised to power 6 मेगा। मेगा इज 10 raised to power 6, राइट। तक पता था किलो इज 10 raised to power 3, दैट इज यहाँ पे आपका अगर 10 kbps है तो वो k की वैल्यू होगी 10 raised to power 3, अगर mbps है तो m हो गया 10 raised to power 6। अब करो। तो महेश एंड पूनम के आंसर आए हैं एंड दिस इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। सो जब तक सबका आंसर नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगी एंड ना ही आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ये चीज का आंसर बताओ मुझे, ये कैलकुलेशन क्यों बता रहे हो? सी 2k बिट्स लिखा हुआ है, राइट। 2k बिट्स है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय 10 mbps। ओके, अब यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 2k बिट्स हम ले सकते हैं 2 into 1024, ठीक है। या बिट्स में आ गया आपका। और 10 mbps इज 10 into 10 raised to power 6, बिकॉज 10 तो ये हो गया और m आपका 10 raised to power 6 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 2 into 1024 अपॉन 10 raised to power 7, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपका क्या होगा 2048 अपॉन 10 raised to power 7, ये क्लियर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब now this is a complex what you can say, this will be a complicated calculation आपकी, ठीक है। So what we do in general terms, what we do is यहाँ पे this 1024 को just for our calculation purpose what we do, we convert it into 1000. Why? Because this is 24 and this is 0, so this is a difference of 24 which is very negligible as compared to the terms that is 10 into 10 raised to power 6, ठीक है। So what it will become, it will become 2 into 10 raised to power 3, ठीक है। एंड किलो भी आपका बेसिकली अगर आप जनरल टर्म्स में बात करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस के दैट इज अ डेटा साइज, तो आप लेते हो 10 raised to power 3 ओनली। अगर मैं बात करूं जैसे m आपका 10 raised to power 6 है, so k आपका होता है 10 raised to power 3। so why we have done this, we do this in these questions because क्या होता है कभी कभी the what you say the calculation become complicated, because अभी आपका है 2048 upon 10 raised to power 7, so how you will solve it,
ठीक है. So what we do is here कि we will try to use 1000 in place of 1024 because 24 is a negligible term as compared to the rest of the terms. So क्या हो जाएगा 2 into 10 raised to power 3 upon 10 raised to power 7. So it will be 2 into 10 raised to power 3 minus 7, that is 2 into 10 raised to power minus 4. Right? So क्या है आपका फाइनल में? Finally you are getting 2 into 10 raised to power minus 4. 2 into 10 raised to power minus 4 seconds. ठीक है. So अगर आपको कल याद हो, if you remember, I have told you कि what is micro. If we have micro, it is 10 raised to power minus 6. ठीक है. So what I can do here is that I can try to convert it into micro. So if I have to convert it into micro, what I have to do? मतलब मेरा आंसर यही आना चाहिए फाइनल. ठीक है. You can leave your answer like this. But if suppose the answer is given in micro, अगर आपके options जो है वो micro seconds में है, that is 10 raised to power minus 6. So this means that I have to add minus 2 and subtract minus 2. Why I have to add and subtract? Because you आपने maths पढ़ा होगा. If we try to change this value, if we try to change the unit, we have to add and subtract both. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग, मतलब आप इसको माइक्रो कर रहे हो, दैट इज 10 raised to power minus 6 कर रहे हो, सो यू हैव टू चेंज दिस वैल्यू एज वेल. सो हाउ इट विल बिकम माइक्रो? माइक्रो कैसे बना सकते हो आप इसे कि यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे यू डू -2. ठीक है. -2 कर दो और फिर क्या करो into 10 raised to power plus 2. दिस इज हाउ यू कैन टर्न इट इनटू अ माइक्रो सेकेंड. दैट इज यहाँ पे आपने पावर में क्या कर दिया -2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका -6. तो दिस विल बिकम माइक्रो. और आप क्या करो, ऐड कर दो 2. सो ऐड करने का 2 मतलब क्या है कि इनटू 10 raised to power 2. सो दिस विल बिकम अगेन सेकंड्स की यूनिट रहेगी. सो 2 into 10 raised to power 2 हो गया आपका 200 और 10 raised to power आपका क्या आ जाएगा -6 सेकेंड. And -6, 10 raised to power -6 is micro, so आपका हो जाएगा 200 microsecond. ये चीज क्लियर हुई? ये पूरा स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे मे बी इन एग्जाम्स आल्सो, सो आपको ऐसे ही यूनिट कन्वर्ट होके हो सकता है मिले, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू आंसर इन 2 into 10 raised to power -4. दे विल जनरली ट्राई टू गिव द आंसर इन फुल टर्म्स कि यहाँ पे आपका माइनस वाला कुछ पार्ट ना बचे, वो ऐसा या तो -6 हो जाए या फिर वो मिली जो होता है आपका, दैट इज योर 10 raised to power -3, उसमें कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो नैनो इज 10 raised to power -9, इसमें कन्वर्ट हो जाए. सो दे विल ट्राई टू कन्वर्ट द वैल्यूज इन दीज 3 यूनिट्स, दैट इज माइक्रो, मिली एंड नैनो. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे करना है. याद रहेगा आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. एक में और अगर क्वेश्चन मुझे मिल जाए. चलो और देखते हैं अभी. Then next we have आपका तीसरा टाइम क्या था? क्यूइंग टाइम. ठीक है. क्यूइंग टाइम बेसिकली रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ टाइम जब कोई भी प्रोसेस, जो कोई भी आपका मैसेज का जो बिट है, दैट बिट इज इन द बफर. ठीक है. बफर में है एंड इट इज वेटिंग at the receiver's end before being processed. तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? The third component in latency is the queuing time, the time needed for each intermediate or end device to hold the message before it can be processed. अब hold the message का मतलब क्या है? hold the message की मैसेज कहीं होल्ड हो रखा है. hold the message कहाँ पे होगा आपका? होल्ड होगा मैसेज बफर में. ठीक है. हर डिवाइस की अपनी बफर होगा जहाँ पे वो स्टोर करता है अपना एलिमेंट, जस्ट यहाँ पे स्टोर करता है मैसेज को. सो क्यूइंग टाइम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम योर मैसेज और योर पैकेट, whatever you say, it is stored in the buffer and it is waiting for its processing. कि अब I will, मतलब टाइम जो को प्रोसेस होने से पहले का ले रहा है. सपोज यहाँ पे बहुत सारे रिसीवर एंड पे बहुत सारे मैसेजेस आ गए, so these messages will be stored in the buffer and the one that is being processed will be processed. So one by one आपके मैसेजेस जो हैं वो प्रोसेस होंगे, या आपके जो भी आपका नोड है, इंफॉर्मेशन है, डेटा जो भी, वो प्रोसेस होगी. दिस इज योर क्यूइंग टाइम.
अब क्यूइंग टाइम जो है आपका, इट इज नॉट अ फिक्स्ड फैक्टर, इट चेंजेस विद द लोड इम्पोज ऑन नेटवर्क। जितना ज्यादा आपका लोड होगा उतना ज्यादा आपका क्यूइंग टाइम बढ़ेगा। सो व्हेन देयर इज अ हेवी ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, द क्यूइंग टाइम इंक्रीजेस। An intermediate device such as router queue that arrive messages and processes them one by one. So क्या करता है राउटर कि जितने भी मैसेजेस पे अराइव होते हैं वो उन्हें क्यू कर देता है और एक एक करके उन्हें प्रोसेस करता है। सो व्हाट इज क्यूइंग टाइम? Queuing time is basically holding your message on in the buffer before processing it. ये क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट एनीवन? Ma'am, what is a fixed factor? फिक्स्ड फैक्टर मतलब कि क्यूइंग टाइम की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, बस ये मतलब है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जितना ज्यादा आप, जैसे आपका नेटवर्क पे जितना लोड है वो चेंज हो। अगर आपका लोड जो है वो ज्यादा है तो क्यूइंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, अगर लोड कम है तो क्यूइंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और कुछ मतलब नहीं है। ओके सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो लेट मी जस्ट ऐड इट हियर। एक मिनट। दे आर सेइंग कि consider two hosts X and Y, ठीक है, and they are connected by a single direct link, connected by a single direct link at rate of 10 raised to power 6 bits per second. Okay, then a distance between two hosts is 10,000 kilometers, and propagation speed along the link is 2 into 10 raised to power 8 meter per second. Then they are saying host X sends a file, ठीक है, of 50,000 bytes as one large message to host Y. ठीक है, then they are saying let transmission and propagation delay be T millisecond and Q millisecond. So find P and Q. So basically they have given you all the information. They're asking you the propagation time and transmission time. So option A है आपका P is equal to 50 and Q is equal to 100. Option B है आपका P is equal to 50, Q is equal to 400. Option C है आपका P is equal to 100 and Q is equal to 50. And option D है आपका P is equal to 400 and Q is equal to 50. So आप बताओ, करो इसे और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन आया था गेट 2017 में। They have given two hosts, that is a sender and receiver, और बाकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, बस आपको पता करनी है इस इंफॉर्मेशन कौन सी क्या है और सॉल्व करना है।
Okay. So Mahesh has given the answer. Baki. लिपिका और कीर्ति, आपका आंसर आ गया? बताओ क्या आंसर लिपिका? Ma'am, second message, transmission message, I have got 40 into 10 to the power minus 2. हाँ, सेकंड मैसेज 40 into 10 to the power minus 2. इसमें से कोई ऑप्शन में आंसर आ रहा है आपका ए बी सी डी में से? No. चलो लेट्स सी. सो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है. व्हाट इज एवरीथिंग. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दिस 10 raised to power 6 bits per second? क्या है ये आपके अकॉर्डिंग? Bandwidth. Everybody feels this is bandwidth. Okay. बताएं, लिखते भी नहीं हो. हाँ, बस एक जना बताया था, बाकी सब समझते हैं. हमारी तरफ से भी यही आंसर हो गया है. फिर ये they have clearly mentioned that this is the distance between two hosts. तो ये आपका distance हो गया. Then speed भी आपको clearly mention कर रखे उन्होंने कि this is your speed and this is the size of the message. ठीक है. So let's try to solve it and देखते हैं फिर क्या आंसर आता है. So first they are saying कि ट्रांसमिशन टाइम जो है आपका वो किससे नोट किया गया है? p मिलीसेकंड से. So first we'll calculate the transmission time. So what is transmission time? Transmission time का फॉर्मूला क्या है? Data size upon bandwidth. ठीक है. So data size क्या है आपका? Data size है 50,000 bytes. So what you will do is you will simply write 50,000 bytes upon bandwidth क्या है? 10 raised to power 6 bits per second. ओके. अब ये आपका बाइट्स में है और ये आपका बिट्स में है. सो आपकी जो पावर्स हैं वो चेंज है, मिसमैच है, यूनिट आपकी मिसमैच है. सो इट विल बी 50,000 into 8 bits upon 10 raised to power 6 bits per second. सबसे पहले तो बिट्स से बिट्स कैंसिल हो गई. ठीक है. उसके बाद what you have to do, you have to 50,000 into 8. So 50,000 into 8, 55 into 8 is basically 40. So this 1 2 3 4, तो 4 zeros extra हो गए आपके यहाँ पे. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये हो गया upon 10 raised to power 6 second. ठीक है. So this will be what, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जो पावर है, जो आपकी पीक जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? मिली सेकेंड में दे रखा है. राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट मिली सेकेंड. यहाँ पे क्या है? सेकेंड्स. सो मिली सेकेंड्स कितना होता है? मिली सेकेंड्स मीन्स 10 raised to power minus 3 second. So you have to convert this into millisecond. So ये हो गया आपका 4 into 10 raised to power 1 2 3 4 5. 10 raised to power 5
I'll change the color, उसपे bright लग रहा हूँ. 4 into 10 raised to power 5. इसका आपको क्या करना है, ये एक तो आपका हो गया 10 raised to power minus 3 second. So you have to do it. You have to what? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये -3 करोगे इसे, सॉरी +3 करोगे इसे, अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में आ जाएगा 10 raised to power 6. इसमें कोई डाउट, इतना कोई डाउट है? No, ma'am. 4 into 10 raised to power ये हो गया आपका 8, अपॉन में क्या है 10 raised to power 6, तो ये 6 से ऊपर जाएगा, ये आपका हो गया है मिली सेकेंड. So it will be 400 millisecond. I don't know आप सबका आंसर A कैसे आ रहा है और सभी का A आ रहा है. कैसे आ रहा है आप लोगों का A? प्लीज एक्सप्लेन करो मुझे. क्या किया आप लोगों ने? मैम 8 minus 6 तो -2 है ना. हाँ 8 minus 6 2. 8 minus 6 क्या कह रहे हो सेनोरिटा, मुझे समझ नहीं आया. मैम 10 raised to -3 power millisecond मैम. 10 power 2 -3 मैम. 10 -3. हाँ मैम 10 power -3. तो आप दोनों को माइनस माइनस कर दोगे तो ये बैलेंस कैसे हुआ? आपका ये सेकंड में था, एंड मिली सेकंड इज बेसिकली, मिली सेकंड अपने आप में 10 raised to power -3 है. सो दिस मींस दैट अगर 10 raised to power -3 सेकंड आप कर रहे हो, सो यू हैव टू ऐड 3. यू विल नॉट सबट्रैक्ट, यू विल ऐड 3. क्लियर? और 2 कहां से आया ये? मैम 8 minus 6 2 बच रहे मैम, ये बोल रही थी मैं. हाँ, तो ये मैंने पहले कर दिया ना यहाँ पे, ये मैंने 10 raised to power -3 को मैंने मिली सेकेंड कर दिया, बिकॉज 10 raised to power -3 सेकेंड विल बेसिकली बिकम व्हाट, 10 raised to power -3 आपका मिली सेकेंड बन जाएगा. ओके मैम. पर आप लोग का तो आंसर ही 50 आया ना, आपका आंसर P की वैल्यू 50 आई है, 400 तो आई नहीं किसी की. 4 तो आना चाहिए था ना. 4 या तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया 8 से, इसका मतलब नहीं किया था. किया था नहीं किया था? 8 से मल्टीप्लाई किया था या नहीं? Yes, ma'am. ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं कभी कभी, मतलब कम से कम 15 बार एक चीज रिपीट करूंगी तब आप लोग बताओगे. ऐसा लगता है कि तो ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट इज डिस्टेंस नाउ? डिस्टेंस दी हुई आपको 10,000 किलोमीटर. क्वेश्चन आंसर्स का सेशन एंड कर दूंगी. अब मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया करूंगी और बस आगे 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 आगे. जवाब तो आप देते नहीं हो एक बार में. अपॉन स्पीड, स्पीड आपको दे हैव मेंशन 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अब ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है. दिस इज 10,000 into 10 raised to power या 1000 लिख लो किलोमीटर को, ये आपका मीटर हो गया, अपॉन 2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया. 8 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7. So this will become what? It will become 10 raised to power 7 upon 2 into 10 raised to power 8. ठीक है. So ये जब आपका ऊपर जाएगा, Point, ma'am, I have done 0.5 into 10 to the power -1. ये आपका हो गया 10 raised to power -1 upon 2, right? So ये आप करोगे, so that is 1 upon 20. ठीक है, because ये 10 नीचे अगर रहेगा, ये -1 नीचे आ जाएगा, so it will be 0.05. 1 upon 20 आपका हो जाएगा 0.05. This is 0.05 seconds. अब I wanted in millisecond. So millisecond is 10 raised to power -3. So इसका मतलब कि 0.05 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power -3 second. So ये 10 raised to power -3 second बन जाएगा मेरा millisecond.
और ये आपका कितना है 5/10⁻²। So 10⁻³ minus 2 हो जाएगा आपका 10. So it will be 50 millisecond. इसमें किसी को डाउट? No. तो ये है आपका क्वेश्चन, सिंपल सी मैथमेटिक्स थी. करेक्ट आंसर हो गया आपका डी. ओके, सो अब जो आपका नेक्स्ट है दैट इज बिट रेट एंड बॉड रेट. सो आपने ये टर्म्स सुने, बिट रेट एंड बॉड रेट. क्वेश्चंस तो इसके किए होंगे, ठीक है. सो व्हाट इज बिट रेट? कोई आइडिया किसी को बिट रेट क्या होता है? मैंने बिट रेट पढ़ाया भी है जब हम नॉइसलेस चैनल बताए थे, तो मैं आपको बिट रेट बताया था. व्हाट इज बिट रेट? बॉड रेट तो नहीं पता होगा क्योंकि बॉड रेट मैंने पढ़ाया नहीं. बिट रेट तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन. तो बिट रेट क्या हुई आपके अकॉर्डिंग? Ma'am, number of bits per second. Right. So bit rate is basically the number of bits that you are transmitting per second. ठीक है, transmission of number of bits per second. So ये हो गया आपका bit rate. And baud rate क्या हुआ? Baud rate यहाँ पे लिखा हुआ है signal rate. So signal rate को baud rate भी कहते हो. So what is baud rate? Baud rate is basically the number of signal that are sent per second. So bit rate हो रहा है कि आप number of bits जो आप send कर रहे हो per second, और baud rate हो रहा है कि number of signals आप send कर रहे हो per second. So the formula is bit rate is equal to baud rate into the number of bit per baud. ओके, सो ये है आपका बिट रेट और बॉड रेट का कनेक्शन एक दूसरे से. सो बिट रेट इज इक्वल टू बॉड रेट इनटू नंबर ऑफ बिट पर बॉड. ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जस्ट वेट, लेट मी जस्ट फाइंड द क्वेश्चन और फिर मैं आपको बताती हूँ. So if you have this question, आपको कोई एनालॉग सिग्नल है, एन एनालॉग सिग्नल carries 4 bits in each signal. In each signal unit. So if 1000 signal units are sent per second, अगर 1 second में sending 1000, so you have to find bit rate and baud rate. करो इसे. एंड आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो, फिर बताओ क्या आंसर आ रहा है. बिट रेट और बॉड रेट क्या होगा आपका? Ma'am, ma'am, beat rate 1000 and baud rate 4000. उल्टा नहीं बोल रहे.
यहाँ पे आपको दे रखा है 1000 सिग्नल यूनिट्स आर सेंट पर सेकेंड, और सिग्नल यूनिट किसकी होती है? सिग्नल यूनिट होती है आपकी बॉड रेट की। सो योर बॉड रेट इज 1000 सिग्नल्स पर सेकेंड, और बिट रेट होगी आपकी, बिट रेट अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, सो बिट रेट इज इक्वल टू बॉड रेट। बॉड रेट कितना है आपका? 1000 इनटू नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड। नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड मतलब कि कितनी बिट्स आपकी एक सिग्नल में सेंड हो रही हैं। पर बॉड मींस पर सिग्नल, सो 4 बिट्स इन ईच सिग्नल, सो इनटू 4, दैट इज 4000 बिट्स पर सेकंड। क्लियर हुआ? दिस इज योर बॉड पर सेकंड and this is your bits per second. अब clear हो रहा है? Yes, ma'am. Always remember, bit rate will always be greater than baud rate. एग्जाम्पल आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी एग्जाम में आएगा तो आपके क्वेश्चन Yes, इससे ma'am. आए हुए हैं, ठीक है? इससे आपके क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम्स, सो ध्यान रखना जब भी कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? सो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बेसिकली मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है? सो यस्टरडे आपको याद होगा तो मैंने एनालॉग एंड डिजिटल, हमने सिग्नल्स और डेटा पढ़े थे। व्हाट वाज एनालॉग? एनालॉग की क्या, एक अगर वर्ड में आपको एनालॉग डिफाइन करना हो तो क्या करोगे? व्हाट इज एनालॉग अगर एक वर्ड में डिफाइन करने को पूछा जाए? जो कोई क्लास में नहीं आया था उन्होंने वीडियो देखी है? कीर्ति और लिपिका आपने रिकॉर्डिंग देखी थी? No, ma'am. ओके, और बाकी लोग तो क्लास में थे। क्या होता है एनालॉग? Continuous signal. राइट, एनालॉग मतलब वो सिग्नल्स जो कॉन्टिन्यूअस हैं, और डिजिटल मतलब वो सिग्नल्स जो डिस्क्रीट हैं। मैंने आपको जो डायग्राम अगर वेव की फॉर्म में बताया था, सो एनालॉग वाज लाइक दिस एंड डिस्क्रीट वाज लाइक दिस, राइट? ठीक है, सो अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? बेसिकली एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, मतलब हम एनालॉग सिग्नल्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे। सो उससे पहले वी शुड नो कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो हम सिग्नल हम पढ़ रहे हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है? सो अगर आपको ये है कि इफ दिस इज द, सपोज दिस इज योर सिग्नल, ये आपका सिग्नल है, ठीक है? एनालॉग सिग्नल एक। सो दिस इज बेसिकली योर एम्पलीट्यूड, ठीक है? इसको आप बोलते हो कि एम्पलीट्यूड कितना है आपकी वेव, आपकी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है? सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? बेसिकली एम्पलीट्यूड मींस द हाइट या फिर पावर ऑफ द वेव। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड। सो ये आपका टर्म हो गया एम्पलीट्यूड। आपके 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशन है। फर्स्ट इज योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नाउ? फ्रीक्वेंसी मींस कि व्हाट जो भी आपका मैसेज जो आप सेंड कर रहे हो, ठीक है? सो नंबर ऑफ टाइम्स, जो एक इंटरवल में कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक कांस्टेंट जो आपका इवेंट है जो अकर हो रहा है, दैट इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। जैसे अगर आपको ध्यान हो कि जब आप रेडियो कभी आप सुनते हो अगर, तो रेडियो में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स कि एक स्पेसिफाइड इवेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। एंड थर्ड आपका हुआ, अगर मैं ऐसे आपका सिग्नल ड्रॉ करूं, इफ आई हैव दिस दीस 2 टाइप ऑफ सिग्नल्स, और अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं दिस टाइप,
मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली सिग्नल्स जो है वो अकर हो रहे हैं. सो ये आपका डिनोट करेगा एक हाई फ्रीक्वेंसी. ओके एंड अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ दिस टाइप मतलब बहुत डिफरेंट मतलब बहुत दूर इंटरवल्स पे आपके चेंजेस हो रहे हैं. सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी इज सिंपली नथिंग बट इट इज दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन. So what is frequency? Frequency is something that repeats itself over and over again, and this is your amplitude. और थर्ड हुआ आपका, थर्ड टाइप हुआ phase modulation. Phase, ठीक है. So phase basically क्या, what we say is phase is same as frequency, but when two or more waveforms are not exactly aligned together. So suppose अगर ये आपका first waveform है, this is your first waveform, and if you have another waveform जो स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है बट द डिफरेंस इज दिस, ये इसका डिफरेंस, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो गया यहाँ पे. किसी पर्टिकुलर एंगल का डिस्टेंस समझ लो, ऐसे टाइप का अगर डिस्टेंस है आपका इसमें, सो दिस इज बेसिकली योर फेज, ये आपका फेज हो जाएगा. ठीक है. सो अगर ये आपका सपोज 0 बोल सकते हो आपकी 0 डिग्री पे हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री आ रही है फेज, और ये आपका 90 डिग्री पे आ रहा है. सो दिस इज व्हाट इज योर फेज. बेसिकली एंगल की बात करते हैं, फेज मतलब आपका एक टाइप का एंगल भी समझ सकते हो. ठीक है. सो phase involves two or more signals. ठीक है. So phase involves the relationship between two or more signals that share the same frequency. इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट इट इन्वॉल्व्स द पोजीशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, कि इनकी एम्पलीट्यूड की पोजीशन क्या है वो इन्वॉल्व होती है इसमें. सो व्हाट इज फेज? बेसिकली फेज में आपकी दो सिग्नल्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट देयर इज अ चेंज इन एन एंगल. ठीक है. सो एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट कितनी है एक सिग्नल की, फ्रीक्वेंसी हो गया कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट इज अकरिंग. ये तीन टर्म्स क्लियर हो गए आपको? यस मैम. ठीक है. फिर अब आपका आया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और बाकी सारे. तो लेट्स स्टार्ट विद द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. नाउ अब एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन और एनालॉग मॉड्यूलेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय एन एनालॉग सिग्नल. ठीक है. तो जो आपका एनालॉग सिग्नल है वो आपकी इंफॉर्मेशन, एनालॉग इंफॉर्मेशन क्या थी अगर हम कल के एग्जांपल में बात करें, सो इफ सम पर्सन वाज स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, so that is the data is being given to you in the form of analog data, that is a continuous data. So, उसको अगर आपको analog signal के form में अगर represent करना है, so that is your analog to analog conversion. So इसके आपके three types हो गए, amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. So what is amplitude modulation? In amplitude modulation transmission, the carrier signal is modulated so that its amplitude varies with the changing amplitude. So अगर आप ये diagram देखो, if you see this figure, so ये आपका modulating signal है. ठीक है. This is the signal that is modulated and ये आपकी carrier frequency है. So now what will happen is जो आपका signal है आप उसको modulate कर दोगे जिससे कि आपका जो amplitude है वो आपका change हो जाए. So this will become, अब आपका जो signal है वो कैसा बन गया, ये आपका signal बन गया. So earlier your signal was like this and this was the frequency that was there. So आपने क्या किया, इस frequency को basically आपने modulate कर दिया. ठीक है. You have changed basically the amplitude. पहले ये amplitude था, अब आपने इसका amplitude क्या किया, increase कर दिया. So this is the amplitude now. So ये है आपका amplitude modulation. तो इसमें क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी से मतलब कि पहले आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो इवेंट्स अकर हो रहे थे वो ऐसे थे. सो नाउ अब आपके इवेंट्स ऐसे हो गए, जस्ट द चेंज इन एम्पलीट्यूड. सो द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर रिमेन द सेम, only the amplitude changes to follow the variations in the information. So nothing is there, कुछ भी नहीं है, बस you have to remember कि amplitude modulation, एक तो आपको पता होना चाहिए amplitude है क्या. So amplitude is basically this thing. So amplitude modulation means that you are changing the amplitude of your signal, nothing else. ठीक है. With the help of a modulating signal. So you are modulating the amplitude of your signal. तो और आपका frequency और phase of the carrier जो है वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा same. This is your amplitude modulation.
देन वी हैव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डायग्राम मैंने सेव नहीं किया है, बट चलो आई जस्ट लुक फॉर इट. अगर मुझे मिल गया सो आई ड्रॉ इट. ओके, सो अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या बोलता है? इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी इज मॉड्यूलेटेड. ठीक है, तो अब आपका जो एम्पलीट्यूड है और जो फेज है वो कांस्टेंट रहेगा, बट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंजेस. तो अगर आपका ओरिजिनल सिग्नल वाज लाइक दिस, ठीक है, सो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रही है, सो इट विल बी ईदर लाइक दिस, कहीं पे इट विल बी कहीं पे इट विल बी लाइक कांस्टेंट नहीं रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो समवेयर इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे हो जाएगी, समवेयर अगेन इट विल बी लाइक दिस, समवेयर अगेन इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अगर आपको ये, अगर मैं एग्जांपल लूं आपका इसका, सो गवर्नमेंट मतलब जो भी आपके ऑल इंडिया रेडियोज हैं, ठीक है, जितने भी आपके ऑल इंडिया रेडियोज हैं, दे आर प्रोवाइडेड अ वेरी नैरो बैंड. मतलब कि आपने नोटिस किया होगा कि 99 से लेके 104 105 के बीच में सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट? सो व्हाई इट इज? बिकॉज गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत नैरो बैंड प्रोवाइड किया है, सो दे ट्यून देयर फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंग टू देयर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपने चैनल को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देते हैं. So that is frequency modulation, that according to their preferences they are changing their frequency of the signal, they are changing the frequency of their signal. So that is frequency modulation, that you are changing the modulation, you are modulating the frequency of your signals. ठीक है, and third one is phase. So phase में क्या हो रहा है? Phase of a carrier signal is modulated to follow the changing level of modulating signal. So peak amplitude and frequency of the carrier signal remain constant, but as the amplitude of the information signal changes, so phase of the carrier change immediately. So what you have to remember in these 3 points is that basically first thing you have to remember is that they are part of analog to analog conversion. ठीक है, and then you have to remember is that कि आपकी 3 terms है, amplitude, frequency और phase. So if you are doing amplitude modulation, तो आपका बाकी दो जो modulations है, that is your frequency and phase, they will remain constant. If you are changing frequency, then your amplitude and phase will remain constant, and if you are changing phase, तो आपका amplitude और frequency constant रहेगा. Any doubt in this? No ma'am. So ये हो गया आपका basically बहुत basic terms है. and अभी भी बहुत पहले, मतलब not when UGC कराता था आपका नेट का एग्जाम, there were very small terms that were used, that were asked in your papers, like quantization क्या होता है. ठीक है, so what we will do is कि instead of discussing that topic, I will try to add those questions someday. हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स आपके वो ऐड करेंगे उन क्वेश्चंस को, और उन्हीं के थ्रू हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज टॉपिक्स एंड व्हाट आर दीज नेम्स. ठीक है, सो ये जो आपके इसमें मेंशन्ड है टॉपिक्स, इफ आई शो यू दी सिलेबस, उसमें अगर जो आपके टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, Ma'am, will we write all the PYQ एक साथ में, then it will be benefited for us to answer the networking question, because there are so many small question. राइट नहीं, मतलब हाँ, जो भी आपको ये लग रहा है कि दिस इज अ न्यू टर्म या आपको नहीं पता है, सो ऑब्वियसली वो आप लिख लो. अगर आपको ये लग रहा है कि दिस इज अ न्यू टर्म और ये मुझे नहीं आता, सो यू शुड राइट. बट वैसे ऐसा कुछ वो नहीं है Okay. कि सब कुछ लिखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे सो यू विल बी नोइंग कि आपको ये आता है या नहीं आता है. ठीक है, सो आपके डेटा कम्युनिकेशन में आपका ये वाली चीज हो गई, कॉम्प्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स हो गए, नॉइसलेस एंड नॉइजी चैनल्स हो गई, बैंडविड्थ हो गया, थ्रूपुट हो गया, लेटेंसी हो गया. थ्रूपुट का फॉर्मूला भी है, चलो वो भी मैं बता देती हूँ आपको अभी हैंड टू हैंड ही, जिससे कि थ्रूपुट ये फॉर्मूला आप लिख लेना अपने उसमें. ठीक है, मैं आपको भी बता दूंगी थ्रूपुट का, और फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे एक आध, तो भी जाएगा. फिर डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन भी हो गया आपका, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमने कर ली, ये डेटा एनकोडिंग अभी मैं देखती हूँ क्या है. फिर ब्रॉडबैंड बेसबैंड ट्रांसमिशन हो गया है, मल्टीप्लेक्सिंग आपकी बची है, वो मंडे को हम करेंगे. ट्रांसमिशन मीडिया आपका बचा है, ये हम मंडे को करेंगे, और ट्रांसमिशन एरर्स और एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म. सो बेसिकली आपका ये फिजिकल लेयर ही है. कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारा पूरा हो गया है, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट. नेटवर्क मॉडल्स में हमारा बस स्विचिंग टेक्निक्स बची है, बाकी वी हैव डन दिस बुलेट एज वेल. व्हाट लेटेंसी बताया तो डिले, अभी तो पढ़ाया लेटेंसी, पूरे की जैसी लेटेंसी तो चल रही थी. कीर्ति लेट आई थी क्या क्लास में?
परफॉर्मेंसेस बताई थी आपको, बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी, एंड लेटेंसी इज इक्वल टू प्रोपोगेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, क्यूइंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग डिले। मुझे लगता है क्लास में आ गए थे, यू आर नॉट, लिपिका के साथ ही तो आए थे आप। लिपिका आप जब आए थे तो लेटेंसी पढ़ा दी थी या पढ़ा रही थी? पढ़ा रही थी। I have started from propagation time, distance by propagation speed. ओके ओके, ठीक है। सो ये आपका ये सब हो गया इसमें, एंड फिर आपका नेटवर्क मॉडल्स में आपका स्विचिंग टेक्निक्स बताया, उसके बाद फिर आपकी ये शुरू होगी, दैट इज योर लेयर्स। ये आपकी फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, फ्लो, एरर कंट्रोल, स्लाइडिंग, ये सब आपकी है डेटा लिंक लेयर। फिर उसके बाद जो आपकी आएगी दैट इज द नेक्स्ट लेयर, दैट इज योर नेटवर्क लेयर। फिर आपकी आएगी दैट नेक्स्ट लेयर, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर और फिर सिक्योरिटी। तो उन्होंने सब एक ही चीजें मेंशन कर दिया है, ठीक है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि वो Throughput. थ्रूपुट, राइट। सो थ्रूपुट का एक फॉर्मूला है, दैट इज थ्रूपुट इज इक्वल टू data size upon transmission time plus 2 into propagation time, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्रूपुट कि आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है, data size upon transmission time plus 2 times your propagation time. So if for example if I say question, ये आप नोट कर लेना, if I say that data size है 100 bits, data size is 100 bits, bandwidth is 10 Mbps, length is 200 meter, and velocity is 2 into 10 raised to power 8 meter per second, and you have to find the throughput. So how you will find the throughput? तो थ्रूपुट का फॉर्मूला अभी हमने देख लिया। सो थ्रूपुट इज इक्वल टू, डेटा साइज कितना हो गया आपका 100 बिट्स अपॉन, बताओ ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि ट्रांसमिशन टाइम प्रोपगेशन टाइम की वैल्यू क्या आ रही है। Ma'am, this is I have told you. Ma'am, the transmission time, data size bits, and bandwidth Mbps. Ma'am, then I have to convert bits to MB. छोटी यूनिट कन्वर्ट करो ना, छोटी यूनिट में। आपकी ये तो ऑलरेडी बिट्स में ही है, दोनों टर्म्स बिट्स में ही है, तो कन्वर्ट क्या करना है इसमें? Then I have to convert MB to bit. हाँ, सो इट इज 100 बिट्स और ये आपका हो जाएगा 10 Mbps है। सो 10 इंटू m क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 6 बिट्स पर सेकंड, बस इतना ही तो करना है। दिस इज 10 अपॉन 10 raised to power 2 upon 10 raised to power 7, so ये माइनस हो जाएगा, that is, so this will be your bit से bits cancel हो गया second, so हो गया 10 raised to power minus 5 second, right? अब चाहो तो सेकंड में ही छोड़ दो, सेकंड में लीव करके देख लो क्या कैसे आंसर आ रहा है, या नहीं तो फिर
मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लो. अगर आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 10 raised to power -5 plus 3 और या मिली सेकेंड में करने के बाद भी +3 हो रहा है तो -2 रहेगा. सो माइक्रो में कन्वर्ट कर लो. आपकी मर्जी है. सेकेंड में छोड़ना चाहो सेकेंड में छोड़ के देख लो. सेकेंड में लीव करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, कैसे होगा. आई डोंट नो कैसे होगा बट लेट्स सी. So 100 upon transmission time हो गया 10 raised to power -5 seconds plus 2 into trans. ये बताओ propagation time किसका आया? Propagation time की वैल्यू है आपकी 10 raised to power -6. मैं बता देती हूँ, ट्राई कर लेना आप लोग. So 100 upon 10 raised to power -5 plus अब 2 into 10 raised to power -6 है. So it will be better कि आप क्या करो, -5 और -6 को पॉजिटिव टर्म्स बना लो. ठीक है. तो इस वाले क्वेश्चन को करो, आप खुद से ट्राई करना. फिर हम इसको मंडे को डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका. इसका चाहो तो Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपने पास. Yes, ma'am. ठीक है. मंडे को we'll discuss this question. Yes, ma'am. ठीक है एवरीवन, Hmm. ले लिया इसका स्क्रीनशॉट सबने? Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ विल हैव द क्लास ऑन मंडे. और यूट्यूब पे भी आपकी कोई क्लास नहीं है. यूट्यूब पे भी आपकी क्लास मंडे को होगी एंड मंडे को कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा वहां पे. तो जिसको भी पढ़ना हो प्लीज वहीं आ जाना. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल गिव यू. अभी इसकी पीडीएफ आज दे दूं आपको Yes, ma'am. या फिर चलो दे दूंगी, है ना. फिर बाकी जो भी ऐड होगा सो बाद में सब ऐड करके आपको बाद में दे दूंगी. चलो ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर. Thank you, ma'am. Ma'am.